Hello students, welcome to my YouTube channel. Now we are going to discuss forest and wildlife resources, that is geography chapter 2 class 10. Okay, the topic of the chapter is forest and wildlife resources. Now we have to first pay attention why these two words are interrelated. See, all the animal being, they try to prefer their habitat zone where they can get their food easily, they can get their shelter, and in that way they can find out their real habitat. Say for instance, if you go to Kerala, then you can find Periyar forest where plenty of elephants are there. If you go to Kaziranga of Assam, you can find rhinoceros, plenty of rhinoceros. So different types of species, they can find their food habit as well as shelter, and accordingly they have concentrated in respective places. That is why we are saying forest and wildlife resources, these two are very much attached. Now अब हमारा इंट्रोडक्शन देखो, जो प्लांट्स एंड एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ये हमारा रहने के लिए जगह ठीक करता है. मतलब व्हाट एवर वी आर ब्रीदिंग, वी नीड वाटर टू ड्रिंक, we need soil to produce our food. All these things are provided through different types of flora and fauna. So forest plays an important role for maintaining our ecological system. Mind it, ecological system. Why? Because they are the primary producer. Only trees can produce the food and all of us are खाने वाला है, खाते जा रहे हैं. ठीक है, तो अब देखो हमारा जो डिस्कशन में जो दो चीज आएगा, एक तो है प्लांट किंगडम और दूसरा है एनिमल किंगडम. दैट मीन्स फ्लोरा एंड फोना. ठीक है, अब देखो इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में इंडिया का प्लेस कितना है? 8% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्पीसीसेस, जितना सारा प्लांट्स एंड एनिमल्स है गोटा वर्ल्ड में, इसमें 8% पूरे के पूरे इंडिया में है. अब देखो ये जो फ्लोरा एंड फोना के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस फ्लोरा एंड फोना? देखो, ह्यूमन बीइंग टेक्स ऑक्सीजन एंड एक्सेल्स कार्बन डाइऑक्साइड. ऑल दीज आर न्यूट्रलाइज्ड थ्रू द प्लांट स्पीसीज एज वेल एज एनिमल स्पीसीज. ठीक है, ऑक्सीजन हम लोग ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ रहे हैं, इन दोनों को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं. फिर देखो, वी नीड फूड, वी नीड क्लोथिंग, शेल्टर, रॉ मटेरियल, मेडिसिन. ऑल दिस थिंग्स वी कैन गेट फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोरा और fauna. Daily food habit we need, whatever we eat, we are eating, that means human being as well as plants, all these are gaining from flora. देखो हम लोग जब चावल खाते हैं कि ब्रेड खाते हैं या तो फिर दाल खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, ऑल सब कुछ फ्रूट्स खाते हैं, सब कुछ प्लांट स्पीसीज से आ रहा है. अब देखो ये जो बायोडाइवर्सिटी, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? देखो तुम लोग क्लास 9th में पढ़ के आए हो फूड चेन, फूड वेब इन साइंस. यहाँ पे ऐसे ये इसको खाता है, ये इसको खाता है, ये इसको ऐसे ऐसे करके एक सर्कल बना लेता है. अगर इस सर्कल में एक को हटा दिया तब फूड चेन ब्रेक हो जाएगा. सो इसीलिए बायोडाइवर्सिटी में क्या है? दीज आर very much interrelated and interdependent network of through a multiple system of networking. So biological diversity is immensely rich in wildlife and cultivated species, diverse in form and function but closely integrated in a system. ठीक है, अब देखो ये बायोडाइवर्सिटी का इंपॉर्टेंस क्या है? These are the main support system of our earth. हम लोग जो है ह्यूमन बीइंग, उनको चाहे या तो फिर कोई भी लिविंग बीइंग के लिए, दिस इज द मोस्ट सपोर्ट सिस्टम बायोडाइवर्सिटी. नेक्स्ट थिंग इज दैट without wide range of animal,
plants and microorganism, we cannot have a healthy ecosystem. अगर सब कुछ ठीक ना रहे तो इकोसिस्टम ठीक नहीं रहेगा. अगर इकोसिस्टम ठीक ना रहे तो we cannot breathe, we cannot take food for eating. As a result, our existence will be in stake. So, considering different types of problems or the survival nature, we are making some classifications of different species. Some species are called normal species. ये normal species क्या है? देखो तुम्हारे एनवायरनमेंट के आसपास जितने सारे प्लांट्स और एनिमल देख सकते हो, मतलब जो अपने आप खुद को प्रोटेक्ट कर सकता है, ऑल दीज आर कॉल्ड नॉर्मल स्पीसीज. ये देखो कैटल, शाल, पाइन, rodent, all these they can survive normally by themselves. Next thing is endangered species, मतलब जिसका नंबर reducing and they are going for danger of extinction. देखो इसमें क्या है, ब्लैक बाक या तो फिर क्रोकोडाइल या फिर इंडियन वाइल्ड एस, all these things their numbers are gradually reducing, so they are going to the state of extinction. Next thing is vulnerable species. What is vulnerable species? जिसका नंबर डिक्लाइन कर रहा है और endangered कैटेगरी में जा रहा है नियर फ्यूचर में. क्यों? If we continue the negative factors to operate, हम लोग जो कर रहे हैं, मतलब एनवायरनमेंट के हार्म करने के लिए जो चीज़ हम लोग कर रहे हैं, अगर इसी तरह चलते रहे तो इन लोग सब खत्म हो जाएगा. इसमें देखो स्पीसीज लाइक ब्लू शीप, एशियाटिक एलिफेंट, गैंगेटिक डॉल्फिन, ऑल दीज आर कॉल्ड vulnerable species. नंबर घट रहा है. नेक्स्ट थिंग इज रेयर स्पीसीज. रेयर स्पीसीज मतलब क्या है? दे आर endangered provided if the negative factors are continuing to operate. स्मॉल पॉपुलेशन, इन लोगों का पॉपुलेशन बहुत छोटा हो गया. इसमें देखो वाइल्ड एशियाटिक बफेलो, डेजर्ट फॉक्स, हॉर्नबिल, दिस टाइप ऑफ स्पीसीज their number have already been reduced and very least in number, and they are going to enter into the endangered list provided if we continue our this type of negative activities. Next thing is endemic species. What are endemic species? देखो the species which are only found in a some particular area. एक दो एरिया में इन लोगों को मिल सकते हैं. देखो अंडमान स्टील, निकोबार पिजियन, अंडमान वाइल्ड पिग, ऑल दीज थिंग्स आर कॉन्फाइंड विद इन द अंडमान आइलैंड्स, सो यू कैनॉट फाइंड इट एवरीवेयर. दीज आर कॉल्ड एंडेमिक स्पीसीज. नेक्स्ट थिंग इज एक्सटिंक्ट स्पीसीज, मतलब जो पहले था अभी नहीं है, खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म. देखो इसमें क्या है, एशियाटिक चीता है, पिंक हेडेड डक है, ऐसा बहुत सारा है. बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, देयर एग्जिस्टेंस वर देयर बट नाउ दे आर नॉट इन एग्जिस्ट. सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज. नाउ व्हाई दे आर गोइंग टू एंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट? ड्यू टू आवर एक्टिविटीज. व्हाट आर द एक्टिविटीज वी आर डूइंग? जस्ट सी. इलीगल वाइल्ड ट्रेड, हम लोग इन लोगों को बेच रहे हैं. फिर हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, हम लोग खुद के लिए इन लोगों का जो डिस्ट्रक्शन है, इनका जो हट है, हम लोग इसको ख़त्म कर रहे हैं. फिर डिफॉरेस्टेशन, वन ऑफ द प्राइम फैक्टर. पॉल्यूशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, all these are pollutions are causing the destruction of flora and fauna. Next is climatic changes, या तो फिर टेम्परेचर बढ़ रहा है या तो फिर बारिश कम हो रहा है इसीलिए. फिर माइनिंग एक्टिविटीज इन डिफरेंट प्लेसेस, plenty of mining activities are going on. These should be stopped, otherwise they will remain no longer. Next thing is construction of river valley projects. We need to have plenty of places, and what we are doing, we simply taking the policy of deforestation. This is the
most dangerous policy. नेक्स्ट थिंग इज हंटिंग एंड पोकिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल। देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारा लॉ बनाया इसको खत्म करने के लिए, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। बहुत सारा आदमी ऐसा है इनके साथ जुड़े हुए हैं जो लोग इनको डिस्ट्रैक्शन कर रहा है। अब देखो लगभग 300 years colonial rule stayed in our country. So from this point of view we can analyze to what extent we blame the colonial forest policy. देखो ब्रिटिश ने क्या किया, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री इंट्रोड्यूस किया। इसके तहत क्या किया, ब्रिटिश नेवी को चाहिए था वुड, प्रॉपर मैच्योर वुड चाहिए। तो इन लोगों ने क्या किया, मैच्योर ट्रीज जितना था इनको काट के ब्रिटिश नेवी को भेज रहा था, और बदले में यहाँ पे एक लाइन बराबर ऐसा कुछ एक दो पौधे लगा दिया, बस खत्म हो गया। नेक्स्ट थिंग इज जब उन लोगों ने रेलवे एक्सपेंशन करने लगा, रेलवे का जो पटरी है उसके नीचे ऐसा कुछ बार्स दे दिया होता है। अभी देखो कंक्रीट का बार है, ये जो बार है पहले रेल लाइन के नीचे जो पटरी रहता है इसको अभी कंक्रीट में दिया हुआ है, पहले जो था वुडन था। तो वुडन के लिए बहुत सारा वुड चाहिए, तो हम लोग क्या किया, पूरे के पूरे फॉरेस्ट को क्लियर कर दिया। फिर एग्रीकल्चर मतलब टी गार्डन, कॉफ़ी गार्डन, इसके लिए बहुत स्पेसिफिक एरिया चाहिए। तो उन लोगों ने देखा ये तो पूरा का पूरा जंगल है, इसको हटा दो, बस चलो लगा दो इसके लिए यहाँ पे एग्रीकल्चर बना देते हैं। ऐसे ऐसे करके इन लोगों ने बहुत सारा पौधे को ख़त्म कर दिया। उसके बाद इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए, फैक्ट्रीज बनाने के लिए बहुत सारा ट्रीज को ख़त्म कर लिया। सो दिस वाज द कंडीशन ऑफ British period. Now we are the nationalistic people. After independence, what happens? Just see. Since 1951, 5000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो फॉरेस्ट है हम लोग क्लियर कर दिया, पूरे के पूरे साफ कर दिया। क्यों? फॉर रिवर वैली प्रोजेक्ट। देखो जैसे नर्मदा सागर है मध्य प्रदेश में, इन्होंने क्या किया, इनंडेटेड 40,000 हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट पानी के अंदर आ गया। 40,000 हेक्टेयर एरिया पानी के अंदर आ गया। अच्छा, इसके अलावा देखिए माइनिंग एक्टिविटीज जो है ये भी डिफॉरेस्टेशन के लिए बहुत ऑन द पॉलिसी है। अब देखो बॉक्सा टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट इन वेस्ट बंगाल, दीज आर सीरियसली थ्रेटेंड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डोलोमाइट माइनिंग होता है, वहाँ पे बहुत सारा हिल्स है, वहाँ पे आउटब्रस्ट होता है, मतलब बाय यूजिंग डिनामाइट दे ऑफन कॉजिंग द एक्सप्लोशन एंड एज ए रिजल्ट these forests are gradually destroying. So what are the causes of depletion of forest resources? फॉरेस्ट क्यों घट रहा है? देखो डिस्ट्रक्शन, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, हंटिंग, पोकिंग, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, environmental pollution, poisoning of forest, forest fire, all these are prime factors for the declination of Indian biodiversity. अब देखो ये environmental destruction जो हो रहा है, we are not getting equal access, that means we are destructing our unequal access, inadequate consumption of resources and differential sharing of responsibilities फॉर एनवायरमेंटल वेलबींग। गवर्नमेंट कर रहा है लेकिन हम लोग कुछ नहीं कर रहा है, इसीलिए अगर दोनों तरफ से शेयर नहीं हुआ तो ऐसा ठीक ठाक से नहीं हो सकता है। फिर ओवर पॉपुलेशन जो है, वर्ल्ड में जितना सारा पॉपुलेशन है, पूरे वर्ल्ड का पॉपुलेशन जितना है उसका 1/3 पॉपुलेशन हमारे इंडिया में है, मतलब एशियाटिक कंट्री में है। अगर ओवर पॉपुलेशन रहेगा तो एनवायरनमेंट डिग्रेड करेगा, या तो फिर इन लोग फॉरेस्ट जो है अपना खुद का प्रॉपर्टीज मानता है, ऐसे करके फॉरेस्ट को नो बोल रहा है, मतलब डिफॉरेस्टेशन चला रहा है। ठीक है, अब देखो व्हाट इज द इम्पैक्ट। इतना तो हम लोग कर लिया, इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? देखो द बायोलॉजिकल लॉस इज स्ट्रांगली correlated with the loss of cultural diversity, mind it, plenty of tribal peoples are there,
those who consider that these forests are their cultural, have their cultural values, their spiritual values, but we often causing deforestation, and it leads to the loss of cultural diversity for these people. Plenty of marginal peoples are there, those who consider that forest and wildlife are the prime source of their food, drink, medicine, culture, spirituality, etc. But they are also facing plenty of threats. Next thing is very most important and serious, that is global warming and due to the causes of greenhouse gases. These are causing plenty of loss of our biodiversities. It also causes flooding, drought in different places. It also causes soil erosion, landslide, plenty of areas में तुम लोग देख सकते हो. All these are prime factor for, all these are prime impact of, rather to say, depletion of forest resources. Now we need to conserve our forest and wildlife. Why? Because these are the support system of our ecology. Unless we get the support system, we cannot survive. We are getting water, air, soil, etc. All these are the parts of ecology and we need to get the support system. ठीक है, अब देखो, it also preserves the genetic diversity of plants and animals for better growth of species and breeding. ये तो चाहिए, इसके अलावा तो ऐसा नहीं हो सकता. मतलब प्लांट अगर नहीं रहेगा, एनिमल नहीं रहेगा, तो हम लोग कैसे रहेंगे? इसीलिए इन लोगों को रहना बहुत जरूरी है. फिर देखो, फिशरीज जो है बहुत सारे आदमी को लाइवलीहुड देता है. ये मेंटेन, ये फिशरीज जो है, these are maintaining the aquatic biodiversity. But if we consume plenty of fishes, if we extract plenty of aquatic flora and fauna, then it will also destroy. So these are being the part of ecology, these should be maintained properly. If we do not maintain, we may have to face the problem of food crisis, medicinal crisis, fabric crisis, raw material crisis. All these things we can easily found. ठीक है. So forest conservation, wildlife conservation is very essential. Now plenty of steps have been taken by government of India. गवर्नमेंट ने क्या किया? देखो, गवर्नमेंट बहुत सारा स्टेप्स ले लिया. First and foremost thing is that in 1972, Government of India have adopted the law, that is the Indian Wildlife Act in 1972. क्यों? To protect the plants and animals. This act क्या किया? This act banned the hunting and poaching of animals, and if anyone is doing, it should be treated a punishable offence. Both the central and state government, they have taken plenty of steps for protecting these by means of establishing natural park, wildlife sanctuaries, all these things. Various projects regarding the conservation of endangered species such as tiger, one-horned rhino, all these have taken by the government so that these species can be maintained their number in our ecology. Next thing is, it is for the first time government of Odisha have showed the policy. Later on it has been taken by the government of India also, which is called joint forest management. What is this? See, joint forest management means the involvement of local communities in the management along with the government. So in that way we can protect the forest by involving the community of that particular area. Now what are the significance of forest? देखो, हम लोग तो इतना सारा बता दिया, फॉरेस्ट का तो कुछ सिग्निफिकेंस होगा. देखो, फॉरेस्ट क्या कर रहा है? Forests help to keep the soil fertile by preventing soil erosion. देखो, जब soil erosion होगा तो मतलब टॉप लेयर इरोड हो जाएगा. टॉप लेयर अगर इरोड हो जाए तो फर्टिलिटी नहीं रहेगा.
अगर वहाँ पे कुछ पेड़ लगा दिए तो वहाँ पे सॉइल इरोशन स्टॉप हो जाएगा, अगर स्टॉप हो जाए तो सॉइल फर्टिलिटी रिटेन करेगा, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज फॉरेस्ट हेल्प्स टू कीप नेचुरल डिजास्टर लाइक ड्राउट, फ्लड ऐसा कुछ नहीं होने देता। और फॉरेस्ट हम लोगों को रॉ मटेरियल सप्लाई करता है, जो कि ना हम लोगों को डेली लाइफ में चाहिए, बहुत सारा रॉ मटेरियल सप्लाई करता है। सबसे बढ़िया चीज है कंट्रोलिंग द एनवायरनमेंट कंडीशन बाय मेंटेनिंग रेनफॉल, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इट मेंटेन्स आवर इकोलॉजिकल बैलेंस। इकोसिस्टम का बैलेंस अगर ठीक ना रहे हम लोग सर्वाइव नहीं करेंगे, ठीक है। दीज आर द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेस। नाउ considering the forests in different places, we have classified these forests into three broad categories. What are these? First thing is reserved forest. देखो इंडिया में जितना सारा फॉरेस्ट है, मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज रिजर्व फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट का मतलब क्या है? यहाँ पे वैल्यूएबल जो ट्रीज है, वाइल्ड लाइफ है, वहाँ उसको कंजर्व करते हैं हम लोग। नेक्स्ट थिंग इज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है इंडिया में टोटल आउट ऑफ टोटल जितना सारा फॉरेस्ट है 1/3 पोर्शन ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मेंटेन करता है, जिसको कहते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसको पूरा प्रोटेक्शन दे दिया। नेक्स्ट थिंग इज अनक्लेस्ड फॉरेस्ट। यहाँ पे देखो बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट फॉरेस्ट हो सकता है। देखो हमारे पास मान लो 10 एकड़ लैंड है, हम वहाँ उसको फॉरेस्ट बना दिया। जरूरी नहीं कि दिस टाइप ऑफ ट्रीज शुड बी देयर, दिस टाइप ऑफ एनिमल शुड बी देयर। नो, इट इज नॉट। आई एम जस्ट मेकिंग अ फॉरेस्ट for the sake of environment. Similarly, a place having abandoned by anybody else, now it is come under government control, and government is maintaining by planting some trees. So in that way it has become a forest. This type of forests are called unclassed forest. ठीक है। अब देखो community and conservation, हम लोग कम्युनिटी का अगर इन्वॉल्व ना करें तो कंजर्वेशन नहीं कर सकते, क्योंकि लोकल कम्युनिटीज जो है अगर हम लोग उनको इन्वॉल्व कर दे तो उसका प्रोटेक्शन भी हो जाएगा, उसका लॉस भी नहीं होगा, ठीक है। राजस्थान में क्या हुआ, यहाँ पे तो ड्राउट बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे सरिस्का टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट जो है वहाँ पे कम्युनिटी कंजर्व किया। वहाँ पे क्या किया, देखो अलवार डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान उन्होंने डिक्लेयर किया, पीपल ने 1200 हेक्टेयर फॉरेस्ट, इसको कह दिया भैरवदेव देवकर, भैरवदेव डकवे भैरवदेव डकब और संचारी। मतलब फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, वाइल्ड एनिमल को प्रोटेक्ट करना है, हंटिंग अगर किसी करने आए तो उनको हम लोग देख लेंगे। बाय दिस वे वी कैन प्रोटेक्ट वाइल्ड एनिमल against the outside encroachment. Next thing is हमारे यहाँ पे बहुत सारा ट्राइबल पीपल्स है लाइक मुंडास, सांताल्स ऑफ छोटा नागपुर रीजन। दे कंसीडर दैट महुआ एंड कदम्बा ट्रीज, दीज आर द सैक्रेड ट्रीज फॉर देम। वो लोग मतलब वर्शिप करता है। अब देखो यहाँ पे देखो उड़ीसा में क्या होता है, उड़ीसा और बिहार में मैंगो ट्रीज जो है ड्यूरिंग वेडिंग उनका मैंगो लीव्स चाहिए, उन लोगों को कुछ रिचुअल्स करते हैं इससे। फिर कुछ आदमी हैं जो पीपल ट्री, बेनियन ट्री, इन लोग ये ट्री को हम लोग कंसीडर करते हैं सैक्रेड ट्री, पूजा करते हैं हम लोग। अब देखो ये जो पिक्चर है चिपको, फेमस चिपको मूवमेंट का पिक्चर है। यहाँ पे चिपको मूवमेंट क्या था, देखो हिमालयन फुट हिल्स में बहुत सारा ट्रेडर्स मतलब ट्रीज को डिफॉरेस्ट कर रहा था। तो यहाँ पे गांव में जितना सारा वुमेन है उन लोगों ने डिसाइड किया नहीं ऐसा नहीं होना नहीं होने देंगे। क्या करेंगे, हम लोग गाछ के साथ जुड़े हुए रहेंगे। अगर कोई ट्रेडर आए वहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि देखो पहले हमको काट लो फिर ट्री को काट लो। इतना सारा रेजिस्टेंस देखा है इन लोगों ने, स्पेशली फीमेल्स। ऑल द ट्रेडर्स आर फोर्स्ड टू गो बैक
and they have successfully resisted deforestation program. So, this is a most vital steps taken by these ladies. This is called Chipko movement. Next thing is farmers and citizens group like the बीच बचाओ आंदोलन. कहाँ पे हुआ था? तेहरी में उन लोगों ने दिखाया कि क्रॉप्स प्रोडक्शन जो हो रहा है वहाँ पे सिंथेटिक केमिकल्स जो फर्टिलाइजर हम लोग दे रहे हैं, इकोनॉमिकली बेनिफिट हो रहा है, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म डेफिसिट होगा सॉइल के लिए, इसलिए इसको रोकना होगा. सो दीज आर द मेन डिस्कशन. तो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हम लोग क्यों पढ़ेंगे? देखो, इफ वी वांट टू take long term protection for the survival of ourselves, then we need to protect forest and wildlife resources. So, government steps is not sufficient or end by itself, rather we need to involve community or individual itself, and in that way we can protect forest and wildlife resources. Mind it, unless we protect these forest and wildlife resources, we cannot ensure the survival of human being. This is the end of this chapter, and I think all of you